Good morning to all students. How are you? Welcome to all. And today is date 28. Now topic is Newton's law. Our chapter number 8. Our Newton's law and its application. Our topic is, our chapter is biomechanics, chapter number 8, and our topic is Newton's law and its application. Newton's law and its application. And in our chapters only meaning and importance of biomechanics, types of flexions, 4 types of flexions, means 4 types of flexions: flexion, extension, abduction and adduction. So four types of movements occur in our body. We can say that around our planes and our axis: sagittal plane, frontal plane and transverse plane, and also different planes have different axes. So all movements occur in different planes and axes. All movements occurs in different planes and axes. Now Newton's law of motion and application. Now Newton's law of motion and its applications. Newton's law of motions, 3 types of Newton's law of motion. First, Newton's first law of motion, Newton's second law of motion and Newton's third law of motion. So first, Newton's law of motion says that all about when body is rest, so body is rest, the remaining rest, and then body is movement. So body is moving position या motion positions. So they try to moving in a position. So जब बॉडी कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, और जब कोई बॉडी मूवमेंट्स में है सो मूवमेंट्स में रहने की कोशिश करेगी. सो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस कहता है, जिसे हम इनर्शिया भी बोलते हैं. ये इज आल्सो नोन एज इनर्शिया. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज इनर्शिया, एंड इनर्शिया आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एट different example in sports field, when doing sprint activity, sprinters doing sprint activity. So sprint activity in sprinters, sprinters when sprinting activity start, when rest position, so they generate more force. So then their body moving forward, and at the end also use the first law of motion. When body is moving position, so they try to maintain our moving position, they try to maintain our motion position. So जब भी हम दौड़ते हैं, स्प्रिंट लगाए, तो स्प्रिंट लगाने के बाद भी देखा होगा कि आगे तक हम बढ़ते चले जाते हैं, आगे हमारी बॉडी मूवमेंट होती चली जाती है. वाई? बिकॉज ऑफ अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? यदि बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की ट्राई करेगी, यदि बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहने की ट्राई करेगी. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन. First law of motion. Now second, first law of motion and different first law of motions apply in all. First law of motion apply in all its sports, in all the sports. First law of motion apply in all the sports, different sports. So there apply first law of motion. And second law of motion, first law of motion and the second law of motion also apply different
sports and in every skills and every games. Now second law of motion says that when more force the more acceleration generated by the body, then less force the less movement या less acceleration generated by the body. When more mass the acceleration is slow, when large mass the acceleration is when more mass the acceleration is slow, then large we can say that लेस मास तो एक्सीलेशन इज स्लो. मतलब जब वजन कम रहेगा, मास कम रहेगा, तब एक्सीलेशन ज़्यादा रहेगा बॉडी में. जब मास ज़्यादा रहेगा, एक्सीलेशन कम रहेगा. सो इसलिए हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, मास एक्सीलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. एक्सीलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. मीन्स एक्सीलेशन तब बढ़ेगा जब फोर्स भी बढ़ेगा. किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा. सो एक्सीलेशन बढ़ेगा तभी फोर्स बढ़ेगा. फोर्स एक्सीलेशन क्यों बढ़ेगा, जब फोर्स किसी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, मोर एंड मोर फोर्स अप्लाई, देन मोर एंड मोर एक्सीलेशन जनरेट. सो नाउ हियर एक्सीलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. मींस इनवर्सली मींस 1/m कर देंगे तो इनवर्सली हो जाएगा, मींस उल्टा हो जाएगा. जब मास ज्यादा रहेगा एक्सीलेशन कम रहेगा, जब मास कम रहेगा एक्सीलेशन ज्यादा रहेगा. तो दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं. सो इन दोनों को मिलकर क्या बनता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बनता है. और इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं, ये कांस्टेंट निकालते हैं. तो इसको फॉर्मूला क्या निकलता है, फॉर्मूला निकलता है इसका F=ma. जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. F=force, m=mass and a is denoted to acceleration. Acceleration denoted in meter per second square, mass in kg and force in Newton. So there second law of motion. Now there second law of motion, then second law of motion. Second law of motion. Now second law of motion says that कि m=F=ma. So different एक्टिविटी में different ये मूवमेंट यूज होते हैं. मैंने पहले बताया कि हर एक्टिविटी में, हर एनी स्किल्स में, एवरी स्किल्स एंड एवरी एक्टिविटी इन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स यूज ऑल थ्री न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तीनों लॉ ऑफ मोशन यूज होते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यूज होगा जब बॉडी स्टार्ट करेगी कोई मोशन और कोई बॉडी रेस्ट करेगी तब. देन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वहाँ यूज होता है जहाँ पर कहीं फोर्स जनरेट हो रहा था. अब देखते हैं कि इन एवरी मोमेंट्स वी कैन सी दैट यदि आप योगा का भी आसंस कर रहे हो या आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप बास्केटबॉल खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो या कहीं भी कुछ कर रहे हो, तो उनमें सब में क्या हो रहा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज हो रहा है. जैसे हम क्या कर रहे हैं अपने, जैसे अब मैं आपको योगा का एग्जाम्पल दूँ. जब आप चक्रासन लगाते हैं, चक्रासन में हम हाथ पीछे करते हैं, हाथ पीछे किए तो हमने फोर्स जनरेट किया, हमारी बॉडी लिफ्ट हुई, है. तो लिफ्ट हुई है तो वो किसकी हेल्प से हुई है, वो जनरेटिंग द फोर्स अवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ अवर हैंड एंड अवर लेग मसल्स. देन रेज योर बैक एंड मेक ए हाफ सर्कल. सो in their chakrasana position also use force, then lift our body with by the help of force and like in gymnastic में जब हम फ्लिप कर रहे हैं, बैकवर्ड फ्लिप या फॉरवर्ड फ्लिप, ये भी कैसे करते हैं, जब बारवेल है, पैरेलल बार पे जो स्विंग कर रहे हैं दोनों साइड, पैरेलल बार पे जब स्विंग कर रहे हैं वो किसके डिपेंड में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो स्विंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, जब फोर्स जनरेट कर रहे हैं, रीच द फोर्स एंड जनरेटिंग द फोर्स, तब वो मूवमेंट ऑकर्स हो रहा है, मूवमेंट्स आ रहा है. क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, जब मूवमेंट्स जो सराउंडिंग में घूम रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, वो फोर्स जनरेट कर रहे हैं.
फोर्स जनरेट किया तो उनका जो एक्सीलरेशन था वो एक्सीलरेशन और बढ़ जाता है, तो इसलिए उनका फास्ट मूवमेंट हो जाता है पैरेलल बार में, जब यू कैन से दैट बार्स में जब करते हैं वो जिम्नास्टिक जब फॉरवर्ड फ्लिप या बैकवर्ड फ्लिप कर रहे हैं वहाँ पर भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है। तो डिफरेंट बहुत सारी एक्टिविटी जहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज होता है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज होता है। सो ऐसे ही डिफरेंट एक्टिविटी हम देखते हैं, और भी सारी एक्टिविटी हैं यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जैसे हम फुटबॉल में देखें तो फुटबॉल में जब हम किक मार रहे हैं लेफ्टेड लॉफ्टेड किक बोलते हैं, जैसे बॉल उड़ती है ग्राउंड से हवा में, when lift the ball by the help of kick, to lift the ball in air and make a we can say that cover the most of the distance. So in this most of the use lofted kick में क्या कहते हैं, lofted kick में हमारे एंकल से उसे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स किससे जनरेट हो रहा है, हमारी थाई मसल्स। तो हमने फोर्स लगाकर जब बॉल लिफ्ट हुई तो उसमें क्या हुआ, एक्सीलरेशन फोर्स लगा के जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जितनी आपने पावर है उतनी लगाए उसमें डिस्ट्रीब्यूट किए, जितनी ज़्यादा आपने फोर्स लगाया तो उसमें एक्सीलरेशन बढ़ा, जो जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना एक्सीलरेशन डेवलप होगा, तो उतनी बॉडी ने स्पीडली मूव किया। सेम हैमर थ्रो में भी हम क्या करते हैं, सराउंडिंग में घूमते हैं, तो हैमर के साथ जो हमने स्प्रिंग है उसको कैच किया और मूवमेंट कर रहा है, तो जितना फोर्स जनरेट किया उतना मूवमेंट ऑकर हो रहा है, उतना मूवमेंट्स ऑकर हो रहा है। सो इसके बाद आपका शॉर्टपट में डिस्कस थ्रो में क्या करते हैं, हम अपना मूवमेंट पहले जितना फोर्स है, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना जनरेट करेंगे। वहीं पर यदि 3 kg का शॉर्टपट है और यदि वहीं 7 kg का शॉर्टपट, तो 3 kg में इजीली फोर्स जनरेट होगा, 3 kg में इजीली फोर्स जनरेट होगा। यदि हम वहीं पर 7 kg का फोर्स लगाएं, 7 kg का शॉर्टपट है हमारे पास और हम उसमें फोर्स लगाएं तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। क्या जैसे हमने लगाया वो कम डिस्टेंस कवर किया, बिकॉज इट इज हैव मोर मास कंपेयर टू 3 kg शॉर्टपट। 3 kg शॉर्टपट के कंपेयर में उसमें ज्यादा मास है। सो ड्यू टू लार्ज मास सो दे कवर सम लेस डिस्टेंस, वी कैन से दैट कम डिस्टेंस यूज करेगा। बिकॉज इन हेयर लेस मास तो कम एक्सीलरेशन, लार्ज तो लेस मास तो ज्यादा एक्सीलरेशन, कम मास तो लेस मास तो ज्यादा एक्सीलरेशन और मोर मास तो कम एक्सीलरेशन। मीन्स वजन ज्यादा रहेगा तो एक्सीलरेशन कम रहेगा और वजन कम रहेगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर ये चीज मैटर करती है। नाउ अब आपका आता है, इसके बाद आपको डिफरेंट क्रिकेट बॉल में, जब क्रिकेट बॉल आती है, बॉलिंग डाली किसी ने, बॉलिंग डाली सो हमने हिट किया सो हम जब उसमें फोर्स जनरेट करेंगे, मोर फोर्स जनरेटिंग इन क्रिकेट बॉल, तो उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी बॉल की, उतना ज्यादा एक्सीलरेशन, उतना ज्यादा बॉडी का मूवमेंट होगा, बिकॉज we increase our force तो acceleration also increase, then body move faster। जैसे हम जितना ज्यादा फोर्स लगाते हैं उतनी ज्यादा बॉडी का मूवमेंट होता है क्रिकेट बॉल में। कम हम सिर्फ इन स्टेप या वी कैन से दैट ओनली ब्रेक करें या रोकें तो वो उतनी ही रुकेगी जितना बॉल आएगी, तो उतना थोड़ा हल्का सा रुक कर रह जाएगी वहां पर। देन जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी बॉडी की एक्सीलरेशन, बॉल की एक्सीलरेशन जाएगी और उतना ज्यादा उतना ज्यादा दूर जाएगी, स्पीड जाएगी उतना ज्यादा बढ़ेगी। मीन्स लार्ज फोर्स लार्ज एक्सीलरेशन, लेस फोर्स लेस एक्सीलरेशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ट्रैक किया वो। इसके बाद आपका हाई जंप में क्या आपकी स्पीड रहती है, तो स्पीड में हाई जंप में क्या आप वर्टिकल जंप लेते हो, बिकॉज वहां पर आप फोर्स लगाते हो ग्राउंड पर, आपने फोर्स लगाया, फिट से फोर्स लगाया तो आपकी बॉडी लिफ्ट हुई, देन क्रॉस द बार को क्रॉस किया। सो वहां पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है। आपका पोल बोल्ट को लेकर ऐसे जो है वो रहता है, 5 जो बम्बू रहता है उसको लेकर बोल्ट जो पोल है उसको लेकर बोल्ट जो गिरते हैं उसको बोलते हैं पोल, जो लेकर जाते हैं पोल जो लेकर जाते हैं पोल बोल्ट में, तो वहां पर ज्यादा स्पीड से आते हैं, पर जैसे ही उसमें लगाते हैं तो फोर्स जनरेट करते हैं, उनकी बॉडी लिफ्ट होती है तो उनकी बॉडी की स्पीड से एकदम ऊपर जाती है। तो वहां पर क्या यूज हो रहा है उनका सेकंड लॉ ऑफ मोशन सीधा बोलता है कि फोर्स ज्यादा जनरेट होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा आएगा, देन
देन आपका फिर हाँ देन मास कम होगा तो ज़्यादा एक्सीलरेशन आएगा, और मास ज़्यादा होगा तो कम एक्सीलरेशन आएगा। तो ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत सारे गेम में यूज हो रहा है, सभी ऑलमोस्ट सभी गेम में यूज होता है, ऑलमोस्ट सभी गेम में। देन इसके बाद आपका लेगो हॉकी में। हॉकी में भी जितना हम ज़्यादा हिट करेंगे, जितना फोर्सफुली हिट करेंगे, तो बॉल की एक्सीलरेशन और बॉल उतनी स्पीड से जाएगी। जो फ्लिक मारते हैं, जो संदीप सिंह मारता है ना फ्लिक, तो फ्लिक जितनी टाइट जाएगी, जितना तेज मारोगे उतना बॉडी नेट के पास जाने में, या वी कैन सी दैट आपको गोल होने में हेल्प मिलेगी। तो जितना ज़्यादा एक्सीलरेशन रहेगा बॉल का बाय द हिटिंग ऑफ हॉकी, तो उतना फोर्स जनरेट रहेगा, बॉल उतनी ज़्यादा स्पीड से गोल पोस्ट में जाएगी। सो देन आपका स्केटिंग में लेग से हम फोर्स जनरेट करते हैं। लेग से जितना फोर्स जनरेट करेंगे उतनी बॉडी फॉरवर्ड जाएगी, लेग से जितना फोर्स जनरेट करेंगे उतनी बॉडी फॉरवर्ड जाएगी। सो यहाँ पर सब में क्या यूज हो रहा है, यूज द आवर एक्सीलरेशन, फोर्स जनरेट मोर एक्सीलरेशन, फोर्स जनरेट मोर एक्सीलरेशन। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और एक और देखो प्लेयर ने अपोनेंट में क्या करते हैं हम, जब भी कोई अपोनेंट्स होता है तो वीकर होता है तो हम उसको डिफेंस करते हैं। किससे, हम उसको स्ट्रांग फोर्स लगाते हैं। स्ट्रांग फोर्स लगाएंगे तो डिफेंस होगा। जैसे ही वहां से रग्बी में देखा होगा, रग्बी में भागते हुए आते हैं तो वहां पर हम उन्हें रोक लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं अपोनेंट्स, स्टॉप अपोनेंट, देन स्टॉप अपोनेंट बाय द हेल्प ऑफ मोर स्ट्रेंथ, बाय द हेल्प ऑफ मोर स्ट्रेंथ। वहां पर हमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगी कंपेयर टू अपोनेंट्स, देन हम उसको डिफेंस करेंगे, इजीली टैकल करेंगे, बिकॉज वी हैव मोर स्ट्रेंथ कंपेयर टू अपोनेंट प्लेयर। सो इजीली टैकल या इजीली डिफेंड टू अवर वीकर प्लेयर बाय द स्ट्रेंथ प्लेयर। स्ट्रेंथ प्लेयर के द्वारा वीकर प्लेयर को इजीली डिफेंस किया जा सकता है और इजीली टैकल किया जा सकता है। सो यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है। देन आपका क्रिकेट में ही हो गया। देन आपका बैडमिंटन में जितना ज्यादा फोर्स जनरेट करोगे उतना शटल इजीली क्रॉस होगी, उतना शटल इफेक्टिव जाएगा अपोनेंट के थ्रू। टेनिस में जितना फास्ट शॉट ले, जितना फोर्स जनरेट करोगे शॉट में, फोर्स जनरेट को उतनी बॉल फास्ट जाएगी, तो उसको अपोनेंट जो है उसको रिसीविंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उनको रिसीविंग करने में दिक्कत पैदा होगी, बिकॉज जनरेट मोर फोर्स, दे स्टॉपिंग slowly. We can say that they have faced difficulty to stopping the ball. Then स्क्वैश में भी क्या करते हैं, दीवार में बॉल लगती है, दीवार में बॉल लगती है तो हम उसे जितना ज्यादा फोर्स से मारते हैं तो उतनी बॉल अच्छे से रिसीव होती है। देन फोर्स से मारते हैं उतनी बॉल रिसीव, उतनी जल्दी ग्राउंड पे आती है, उतनी फिर जल्दी से बॉल देते हैं। तो जितना हम फोर्स जनरेट करेंगे बॉल जितनी फास्ट तेज जाएगी उतनी ही स्पीड से वापस आएगी, तो अपोनेंट को किसी रिसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो वहां पर भी हमारा क्या सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज कर रहा है। इन द शूटिंग ऑल्सो यूज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मीन्स जब हम पिस्टल्स में से जब हम प्रेस करते हैं, ट्रिगर को प्रेस करते तो ब्लड जो वो बोलते हैं जो बंदूक की गोली है, जो गन शॉट करते हैं तो उसमें जो बंदूक की गोली है, जो उसमें बंदूक की गोली में जो गोली रहती है वो क्या होगा, जैसे हम ट्रिगर को प्रेस करेंगे तो जो बंदूक की गोली है वो उसमें पीछे से ट्रिगर जो लीवर रहता है वो उसमें फोर्स जनरेट करता है। फोर्स से प्रेशर करेगा जो जैसे फोर्स से उसको ट्रिगर जो लीवर जो है वो फोर्स प्रेशर करेगा तो उतनी फोर्स से प्रेशर के साथ वो जो वो बंदूक है वो उतनी तेज, बंदूक से जो गोली निकलेगी उतनी फास्ट जाएगी, बिकॉज मोर फोर्स जनरेट बाय द लीवर। सो एक्सीलरेशन डेवलप इन अवर बंदूक की गोली में जो बंदूक की गोली है उसमें डेवलप होगा स्ट्रेंथ और एक्सीलरेशन। तो मोर फोर्स के साथ और मोर एक्सीलरेशन के साथ वो स्पीड से बाहर निकलेगी। सेम आपका आता है अब जूडो में। इन जूडो में जितना हम फोर्स लगाएंगे, जैसे एक पॉन हुआ, सूर्य माता जो होती है पॉन एक हाई वो है पॉइंट है, उसमें क्या करते हैं जितना आपने अपोनेंट को लिफ्ट किया, जितना स्ट्रांगली आपने अपोनेंट को क्रॉस करके गिराया है, सो वहां पर क्या होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज वहां पर फोर्स जनरेट किया तो अपनी बॉडी को एक्सीलरेशन के साथ उसने पटक दिया, एक्सीलरेशन के साथ अप करके डाउन कर दिया, तो वहां पर क्या सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ इन रेसलिंग ऑल्सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज।
व्हेन वी यूज टेक्निक या धोती पछाड़ या धोबी पछाड़ इन रेसलिंग ऐसे टेक्निक नेम, व्हेन हम उसको लिफ्ट करते हैं या उसको उठा के हम गिराते हैं, वहां पर क्या हमारा फोर्स जनरेट होता है। जितना हम फोर्स जनरेट करेंगे उतनी जल्दी वो इजीली लिफ्ट होगा, उतनी जल्दी हम उसे पट करेंगे, मीन्स ग्राउंड में उसे बिठा देंगे या वीके से ग्राउंड में हम उसे पछाड़ देंगे। बाय द हेल्प ऑफ मोर फोर्स जनरेटिंग मोर एक्सीलरेशन एंड मोर परफॉर्म इजली टेक्निक्स। सो यहाँ पर होता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब नाउ आता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी डिफरेंट एक्टिविटी में, हर एक्टिविटी में यूज होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब एक रनर जो स्पाइक लगे रहते हैं, स्पाइक लगे तो वो फोर्स जनरेट करता है, ग्राउंड में फोर्स लगाता है, तभी उसकी बॉडी आगे जाती है। जितना फोर्स लगा है उतनी बॉडी में फोर्स लगेगा, आगे जाएगी। सेम बंदूक की गोली, जो बंदूक में जो रहती है गोली रहती है ना, उसमें देन आपका बैडमिंटन में शटल आ रही तो उसका जितना फोर्स आप शटल आई उसने आपको रोका या आपने उसमें हिट किया तो फोर्स पहले शटल का लगा, उस पर शटल का लगा जो बैडमिंटन का रैकेट है उस पर, रैकेट ने फिर फोर्स जनरेट किया तो शटल उस साइड पहुंची। देन ऐसे टेनिस अपोनेंट से बॉल आई है, हमने उसे रिसीव किया तो वहां से जो बॉल आई उसको प्रेशर लगा और जैसे फिर हमने रिसीविंग किया तो वो वापस से फिर दोबारा उस साइड चल जाएगी। बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ से दैट एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक बॉडी का एवरी एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक उसका एक्शन होता है तो उसके एक्शन में अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे बॉल आई तो उसने डायरेक्ट हमने हिट किया तो वहां से जो बॉडी आएगी, जो बॉल आएगी उसका भी फोर्स जनरेट होगा, इधर से हमने जो मारा उसमें भी फोर्स जनरेट होगा। सो वो बॉडी क्रॉस हो जाएगी। सो बिकॉज जितना बॉडी जो अपोनेंट बॉडी आ रही है, अपोनेंट वो चीज आ रही है, वो जितना फोर्स लगाएगी उतना ही जिससे हम लगा रहे हैं वो भी फोर्स जनरेट करेगी। सो ऐसा ही अब जहाँ से हम अब इसके बाद स्विमिंग में क्या है, जब हम स्ट्रोक लेते हैं, स्ट्रोक लिया तो स्ट्रोक में हम क्या करते हैं, जैसे फॉरवर्ड जो फ्री स्टाइल में हम क्या करते हैं, वन हैंड आगे जाता है, अदर हैंड पीछे जाता है, तो पीछे वाटर में फोर्स लगाता है, तो वाटर पीछे शिफ्ट होगा, उसमें फोर्स जनरेट होगा तो हमारी बॉडी फोर्स जनरेट हुआ, हमारी बॉडी ने आगे शिफ्ट किया। देन अदर हैंड से फोर्स जनरेट हुआ, हमने वाटर को प्रेस किया, फोर्स जनरेट हुआ, हमारी बॉडी आगे जाएगी। देन यहाँ पर भी फोर्स जनरेट हुआ, हमारी बॉडी आगे जाएगी, यहाँ पर भी फोर्स जनरेट हुआ, हमारी बॉडी आगे जाएगी। तो जितना ज्यादा फोर्स जनरेट करते हो वहां पर बॉडी उतनी आगे जाती है। बिकॉज देन पुश द वाटर और बॉडी इज जनरेटिंग फोर्स एंड वाटर आल्सो जनरेटिंग फोर्स, तो अगर बॉडी मूव फॉरवर्ड, सो बॉडी मूव फॉरवर्ड हो जाती है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज होता है स्विमिंग में। देन आपका स्विमिंग के बाद आता है आपका क्रिकेट बॉल में, जब बॉल आ रही है तो हिटिंग करना, तो भाई फोर्स बॉल का भी आया, तो बैट का भी हमने फोर्स लगाया, तो उसका फोर्स लगा तभी टकरा के वापस गई है बॉल। तो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना ज्यादा फोर्स उसने लगा तो उतनी अपोनेंट बॉडी ने फोर्स लगाया तो वो बॉडी को मूवमेंट हुआ। ना आपका बैडमिंटन हुआ, शूटिंग हुआ, टेबल टेनिस हुआ, फुटबॉल हुआ। फुटबॉल में भी जब बॉल आई थी, बॉल हमने रोका, देन उसमें जितना फोर्स लगा तो उसमें बॉल का भी फोर्स लगता है, तब जाकर बॉल मूव करती है। इसके बाद हॉकी में बॉल आई तो हमने इसको स्टॉप किया, बिकॉज फोर्स आया था वहां से, तो हमने भी इधर से फोर्स जनरेट किया, तब वो इक्वल फोर्स हो गया, उस इक्वल फोर्स में तब वो बॉल रुक पाई है। यदि हम वहीं पर ज्यादा फोर्स जनरेट कर देंगे तो बॉल चली जाएगी। इसलिए हमने रोका, ब्रेक किया तो बॉल स्टॉप हुई, बिकॉज हमने हॉकी स्टिक से फोर्स जनरेट किया, तो बॉल आई, स्टॉप हो गई वहां पर। देन आपका कई सारे एक्टिविटी हैं जहां पर टग ऑफ बॉल में क्या करते हैं, अपोनेंट प्लेयर फोर्स लगाते हैं, यहाँ से अपोनेंट प्लेयर फोर्स लगाते हैं, इस साइड के जो अपोनेंट प्लेयर फोर्स लगा रहे हैं उस साइड के अपोनेंट प्लेयर फोर्स लगा रहे हैं। यदि इक्वल फोर्स लगता है तो वो नहीं हो तो शिफ्ट, बिकॉज दोनों साइड इक्वल फोर्स लगा, जहाँ ज्यादा फोर्स लगता है वहां मूव कर जाती है। वहां पर भी क्या हो रहा है, इक्वल इन अपोजिट फोर्स, यहाँ पर इस साइड से फोर्स लगा तो उस साइड भी फोर्स जनरेट हो रहा है, इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। सो दोनों की रिएक्शन क्या, कुछ नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब जब कोई एक बॉडी फोर्स जनरेट करती है तो अपोनेंट बॉडी भी फोर्स जनरेट करती है, जो उसको मूव कराने में हेल्प करती है। देन आपका स्कीपिंग रोप में जब आप जैसे जंप करा तो ग्राउंड पे भी हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। पहले हमने फोर्स लगाया तब हमारी बॉडी लिफ्ट हुई है, फिर डाउन गया, फिर हमने ग्राउंड में फोर्स लगा तो ग्राउंड ने हमारी बॉडी क्या किया, ऊपर लिफ्ट किया, ग्राउंड ने हमारी बॉडी क्या किया,
ऊपर लिफ्ट किया, पहले डाउन गए, फोर्स जनरेट किया, फिर ग्राउंड नाम की बॉडी को ऊपर लिफ्ट किया, पहले नीचे गए, नीचे जनरेट हुआ फोर्स, फिर ग्राउंड बॉडी ऊपर लिफ्ट किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो सारे डिफरेंट गेम में तीनों मोशन का बहुत यूज है और तीनों मोशन की हर एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स फील्ड में, सब जगह सारी जगह स्पोर्ट्स फील्ड में तीनों मोशंस की एप्लीकेशन यूज हो रही है। चाहे आप देख लो उसमें स्पोर्ट्स को जो रैकेट गेम्स देख लो, चाहे फुटबॉल देख लो, चाहे मेजर स्पोर्ट्स देख लो, सारे गेम्स ऑल गेम्स इंक्लूड ऑल गेम्स में सभी में क्या होता है, आपके तीनों लॉ ऑफ मोशन लगते हैं। लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन लॉ लगता है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लगता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लगता है। ना आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन, वो टुमारो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।